Sachin Sawant of the Congress Party is joining us here on Mirror Now. Many thanks, Mr. Sawant, for joining us here on Mirror Now. First up, my first question to you, as far as this Tata Airbus project is concerned, tell us what stage did the Tata Airbus project deal reach when the MVA government was in power? You need to understand, we have to refer to the statement of Mr. Uday Samant himself. He himself had told that the new Shinde-Fadnavis government is interested in getting that particular project, and it is supposed to come at Nagpur Mihan. So, on what basis did he say that? And you need to understand that yesterday, when he was telling the people of Maharashtra that the MOU was already signed 1 year before, he did not mention that the MOU was signed between the central government and the company itself. There wasn't any involvement of Gujarat government. Right. Till yesterday, when we came to know. Mr. Sawant, sorry, my question, I've asked a very pointed question. When the MVA was in power, till what stage did this project deal reach as far as Maharashtra is concerned? Was there an official communication between the Maharashtra government, the then Maharashtra government? Right. So I've asked a very pointed question. If you could reply to that, yeah. There definitely was a communication between the company and the government of Maharashtra, but you need to understand, neither there was any communication between the Gujarat government and that particular company, because central government itself was interested in having that particular project in Dholera. You need to understand, over here we are talking about the partisan approach of the central government, because our Honorable Prime Minister is working not as the Prime Minister, but the Chief Minister, as the Chief Minister of Gujarat. Right, Mr. Sawant. Right, Mr. Sawant. That is what we want to point out. How do you expect a state to compete with another state if our Prime Minister himself is interested in giving that particular project to that particular state? Okay, right, Mr. Sawant. Right, Mr. Sawant. Many thanks for joining us here on Mirror Now and sharing your views. Now we're being joined by Maharashtra Congress Chief Nana Patole here on Mirror Now. Mr. Patole, many thanks for joining us here on the broadcast. So my first question to you is, of course, we did learn that you've called Chief Minister Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis as Gujarat agents. First up, please tell us what makes you feel so. आपको पता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बदली गई थी, वो सरकार बदलने में जिस तरह से केंद्र की सरकार उसमें पूरी ताकत के साथ उतरी थी, फिर आसाम, गुवाहाटी से लेके गुजरात से लेके तो गोवा तक, इस तरह से वो खेल हो रहा था। एक महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस तरह की सरकार बदलने का ये जो तरीका था, इस महाराष्ट्र को बदनाम करने की व्यवस्था उस समय बनाई गई, और उसके पीछे का राजनीति जो थी, वो राजनीति अब महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र में वेदांता जैसा प्रकल्प हो, महाराष्ट्र में टाटा एयरबस का प्रकल्प हो, ऐसे हजारों करोड़ के प्रकल्प जो आज गुजरात में लेके जाने का काम जो शुरू हुआ है, ये महाराष्ट्र को, और मैंने उससे आगे कहा है कि आज कि ये कुछ दिन के बाद तो महाराष्ट्र का मुंबई भी गुजरात में ले जाएंगे। ऐसी स्थिति गुजरात के बैठे हुए केंद्र में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नीयत महाराष्ट्र के बारे में क्या है वो समझ में आ रही है, और इसलिए सिर्फ पॉलिटिकली बयान नहीं लेंगे, ये हमारे महाराष्ट्र की जनता का बयान है कि इस तरह से अगर महाराष्ट्र को लूटा जा रहा हो, महाराष्ट्र को बर्बाद किया जा रहा हो, महाराष्ट्र में इस तरह के उद्योग ले जाकर बेरोजगारी बढ़ाने का काम जो किया जा रहा है। Mr. Patole, right, Mr. Patole, there we seem to have lost that. Right, Mr. Patole, जो हम एयरबस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए बीजेपी ऐसा बोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत जो है, स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, वो ऐसा बोल रहे हैं कि एमओयू साइन हुआ था 2021 सितंबर में, और ये बात अब उठाई जा रही है सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। उसके लिए आपको क्या बोलना है? वो बोल रहे हैं कि एमओयू तो 1 साल पहले ही साइन हो गया था।
मैं आपको वही इश्यू पे आ रहा था कि वेदांत जब गुजरात में गया था तब भी इन लोगों ने इस तरह का झूठा बयान दिया था, और हमने जब पेपर इनके सामने रखे तो तब ये चुपचाप हो गए। ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, क्योंकि झूठ बोल के ही सरकार आई और असंवैधानिक सरकार है। ये सरकार को अभी भी कोर्ट में ये सरकार पड़ी हुई है। और क्या कल कोर्ट ने अगर डिसीजन, ये 16 एमएलए जो शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये सरकार ऐसी भी जाने वाली है। तो एक्चुअली ये सब डिसीजन जो लिए जा रहे हैं ये गलत लिए जा रहे हैं, और ये झूठ बोलते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं, महाराष्ट्र की जनता के साथ हर बार झूठ बोलते तो हैं। मिस्टर पटोले, आप बोल रहे हैं कि एमओयू साइन हुआ ही नहीं था 2021 में, और ये सरासर झूठ है, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ था। झूठ है, ये झूठ है, पर आपके पास प्रूफ है ये प्रूफ करने के लिए कि वन ये झूठ है, और आप जब पावर में थे तब किस स्टेज तक ये डील पहुंची थी? आपके पास कोई प्रूफ है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है? हम उसके पेपर भी हम देंगे मीडिया को। आपने देखा होगा कि वेदांता में ये ऐसे ही बोला गया था, तो फिर वेदांता में सर, ये अभी हम एयरबस की बात कर रहे हैं, वेदांता की नहीं, अभी हम एयरबस की बात कर रहे हैं। आपके पास एयरबस का प्रूफ है? मैं वही बोला ना, एयरबस का भी हमारे पास प्रूफ है। जैसे वेदांता में भी इन लोगों ने शुरुआत में ऐसे ही बोला, तब जब हमने पेपर दिया तो चुप हो गए। तो अभी भी हम एयरबस का भी पेपर हम देंगे, और फिर बाद में इनका झूठ सामने आएगा, क्योंकि इनका बेसिक ही झूठ बोलकर भ्रष्टाचार कर कर महाराष्ट्र को बर्बाद करने का इनका प्लान है। और वो उसमें वो सक्सेस तो हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनको उनकी जगह दिखाने के लिए मानसिकता बना चुकी है। तो सर, आप बोल रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? और आप बोल रहे हैं कि आपके टाइम पे क्या महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन हो गया था? बिल्कुल, उदय सामंत जो बोल रहा है, क्योंकि उस समय वो भी खुद मिनिस्ट्री में था, अब ये उस समय के सब पेपर उसको भी पता है, लेकिन अब वो एलिगेशन सरकार पे नहीं आना चाहिए, ईडी के सरकार पे नहीं आना चाहिए, इसलिए वो झूठ बात बोल रहे हैं। अब उसका पेपर हम तुमको कल देंगे, क्योंकि हम लोग अभी राहुल जी की पदयात्रा का सब रूट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके लिए हम रूट पर हैं। आप देख रहे हो कि मैं आपके साथ गाड़ी में मैं जर्नी कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही बॉम्बे हम जाएंगे और हम मीडिया को वो सब पेपर देंगे, पेपर हम लोगों ने निकाल दिया है। तो आप मिस्टर पटोले, आप बोल रहे हैं सरासर झूठ है ये, और आप हमें प्रूफ देंगे आप इस बात का। और अच्छा, आप बताइए, डील आफ्टर डील हाथ से निकले जा रही है, तो आपका फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है एज एन ऑपोजिशन? देखो, हम इस महाराष्ट्र को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की निर्मित कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने ही इस महाराष्ट्र को खड़ा किया और मुख्य धारा में लाया। और जिस तरह से महाराष्ट्र को ये ईडी की भाजपा की सरकार जो महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है, ये हम लोग कभी सहन नहीं करेंगे। हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और इस तरह से गए हुए सब प्रकल्प, क्योंकि गुजरात में सरकार बीजेपी वहां हार रही है, और वहां पे हम प्रकल्प ला रहे हैं, और इस बहाने से हम वहां जीतेंगे। लोगों को प्रलोभन देने का काम भी बीजेपी गुजरात में कर रही है। किसी राज्य की व्यवस्था को लूट कर अगर अपना राज्य बनाना चाहते, तो गुजरात के लोग भी इनको माफ नहीं करेंगे। और हम यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रकल्प हम वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर पटोले, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू।